Good morning, students. So now let's start with Kingdom Protesta. Last class में we had done Kingdom Monera. So Kingdom Monera में I had told you कि जो Kingdom Monera है, it includes unicellular prokaryotic organism. Bacteria is the main group of organism which is found in Kingdom Monera. Last class में हमने discuss किया था that we can classify bacteria into we can classify bacteria into four groups on the basis of their shape. So I hope आप सबने वो revise कर लिया है. देन आई टोल्ड यू कि बैक्टीरिया को हमने फर्दर 3 और ग्रुप्स में डिवाइड किया डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज. वी हैड आर्के बैक्टीरिया, we had eubacteria, we had mycoplasma. So now let's start with kingdom protista. So before I start with this kingdom, I would like to thank www.bankofbiology.com because I'm using their PDF. Now in this kingdom protista, we have to discuss about unicellular eukaryotic organism. ये जो kingdom है किंगडम प्रोटेस्टा, इसमें सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो यूनिसेल्युलर हैं, जो यूकैरियोटिक हैं. अब इसमें जब आप ये देखो फर्स्ट स्लाइड देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल्ड है, मींस यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोटिक है. ऑब्वियसली अगर ये ऑर्गेनिज्म या ये जितने भी किंगडम प्रोटेस्टा के मेंबर्स हैं अगर यूकैरियोट्स होंगे तो दे विल बी हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, means nucleus will be covered by nuclear membrane, and then they will also be having membrane bound organelles. आपने 9th या 10th में एक चैप्टर पढ़ा था ना जिसमें you had studied about various cell organelles. Mitochondria is a cell organelle. Then we have nucleolus जो nucleus के अंदर होता है. Then we have endoplasmic reticulum. It could be rough, it could be smooth. We have mitochondria, we have chloroplast, we have vacuoles, we have lysosome. तो जितने भी आपने organelles पढ़े थे, means जो cell के further parts होते हैं, these are called cell organelles. So these membrane bound cell organelles are found in case of these eukaryotes. अब जितने हमारे ये प्रोटेस्टा के मेंबर्स हैं, सम ऑफ देम माइट बी हैविंग सर्टेन लोकोमोटिव ऑर्गन, मीन्स जो उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करने में हेल्प करते हैं. लाइक दे मे बी हैविंग फ्लैजिला एज यू कैन सी इट हेयर, और दे मे बी हैविंग सीलिया. आप सब लोगों ने पैरामीशियम का डायग्राम देखा है, सो यू नो कि पैरामीशियम इज कवर्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ सीलिया. सो ये जो फ्लैजिला या सीलिया प्रेजेंट होते हैं, दे हेल्प इन द movement of the organism from one place to another. Now I am giving you one assignment question कि आपको फाइंड आउट करके आना है कि जो फ्लैजिला है वो कौन से प्रोटीन का बना होता है और जो सीलिया है वो कौन से प्रोटीन का बना हुआ है. मीन्स यू हैव टू फाइंड कि विच टाइप ऑफ प्रोटीन is involved in the formation of flagella and what type of protein is present in cilia. And apart from the protein और भी दो तीन जो basic differences हैं between flagella and cilia that you have to write in your assignment notebook. So try to write at least 4 differences between cilia and flagella. That will be your question number 1 of the assignment today. Now coming to the topic again. So I was telling you we are discussing the features of kingdom protesta. तो ये जो protist होते हैं they are mostly aquatic, means they are found in the water. Either it could be fresh water, river water, or it could be salty or sea water. Then ये यहाँ पे जो हमारे protist हैं, especially जो यूग्लिना वगैरह है, अभी हम आगे discuss करेंगे. So ये plants और animals दोनों के features exhibit करते हैं. तो अगर कोई ऐसा organism है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों के फीचर्स को एग्जिबिट कर रहा है, शो कर रहा है, सो सच ऑर्गेनिज्म विल बी कॉल्ड एज अ कनेक्टिंग लिंक. मतलब कि दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. अभी जब हम यूग्लिना करेंगे देयर आई विल बी टेलिंग यू इन ग्रेट डिटेल. देन दे कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ऑल्सो, दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ऑल्सो. जैसे जो हमारे क्राइजोफाइट्स हैं, डायटम्स हैं, गोल्डन एल्गे हैं, वो तो सिंपल बाइनरी फिशन से डिवाइड हो जाएंगे. एंड वी नो जो बाइनरी फिशन है वो ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है. इनमें सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो सकता है. ठीक है, सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में व्हाट विल हैपन कि जो सेल्स हैं वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगी. जैसे कल हमने बैक्टीरिया के केस में कंजुगेशन और बाकी सब चीज़ें पढ़ी थी, तो वही सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ पे भी होता है कि जो दो सेल्स हैं वो आपस में ऐसे अटैच हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड दे विल बी एक्सचेंजिंग अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए. तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी जैसे बैक्टीरिया से मिलता जुलता ही होता है, विच वी कॉल कंजुगेशन, सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन. तो जो हमारा किंगडम प्रोटेस्टा है उसको हमने 5 मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है क्राइजोफाइट, उसकी पिक्चर ये वाली है. एंड क्राइजोफाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टा. ये प्रोटेस्टा का सबसे ब्यूटिफुल ग्रुप है. इसमें एक्चुअली जो शेप होती है, साइज होती है, जो इनकी वॉल के ऊपर पैटर्न बना होता है, दैट्स वेरी यूनिक. वी विल डिस्कस इट शॉर्टली. देन वी हैव सेकेंड पार्ट दैट इज कॉल्ड डाइनोफ्लैजिलेट. सो यू कैन सी इट हेयर.
डाइनो का मतलब होता है हैविंग टू फ्लैजिला, अभी आगे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. देन वी हैव यूग्लिनॉइड्स. तो यूग्लिनॉइड एक बड़ा स्पेशल ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म आता है, एंड दैट इज कॉल्ड यूग्लिना. ये एक्चुअली सारे यूग्लिना के ही अलग अलग थोड़ा सा इन्होंने डायग्राम्स शो किए हुए हैं, डिफरेंट सब स्पीशीज आर देयर. सो जो यूग्लिनॉइड ग्रुप है उसमें सिर्फ यूग्लिना एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म है. क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट है तो हम उसको किसी और ग्रुप में नहीं डाल सकते, तो हमने सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म के लिए पूरा ग्रुप क्रिएट किया है. आगे हम डिस्कस करेंगे कि यूग्लिना बहुत ही यूनिक है, उसको हम किसी भी और ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट में प्लेस नहीं कर सकते. तो हमने सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए एक फुल फ्लेज ग्रुप बनाया है, बिकॉज इट विल नॉट बी जस्टिफाइड कि हम अगर उसको किसी और चीज़ के साथ क्लब कर दें. देन दिस इज योर स्लाइम मोल्ड. तो ये जो हमारा फोर्थ ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स, ये एक टाइप का सैप्रोफाइट होता है, प्रोटिस्ट है. वी नो कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं. अभी जब हम आगे स्लाइम मोल्ड डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू कि जब फर्स्ट टाइम स्लाइम मोल्ड डिस्कस हुए थे, देखो देखने में बड़े वियर्ड से लगते हैं, जेली लाइक लगते हैं. सो स्टार्टिंग में जब इनको पीपल हैड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम, तो जितने भी साइंटिस्ट थे उनको लगता था कि ये कोई एलियन है, मीन्स इट्स लाइक कोई ऐसा एलियन जेली लाइक मटीरियल है जो कहीं किसी दूसरे गैलेक्सी से या किसी दूसरे प्लानट से अर्थ के ऊपर आए. लेकिन जब उन्होंने उसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया देन दे गॉट टू फाइंड इट आउट इट इज़ नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा. ये यूनिसेल्युलर जो हमारे यूकैरियोट्स हैं उसी का एक ग्रुपिंग हो रखा है. सो जब व्हेन वी विल डिस्कस स्लाइम मोल्ड एंड आई विल टेल यू द स्ट्रक्चर इन ग्रेट डिटेल. देन वी हैव द फिफ्थ ग्रुप विच इज़ कॉल्ड प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स में पैरामीशियम भी आता है, प्रोटोजोअन्स में यूग्लिना भी सॉरी नॉट यूग्लिना, इसमें आपका अमीबा भी आता है, एंड अमीबा इज ऑल्सो देयर. सो वी विल डिस्कस. सो हाउ मेनी ग्रुप्स वी हैव डिवाइडेड किंगडम प्रोटिस्टा इनटू? वी हैव डिवाइडेड देम इनटू 5 groups, and these are the groups and we have to now study their structure one by one. उसके बाद now let's start with first ग्रुप दैट इज कॉल्ड क्राइजोफाइट्स. ठीक है, अब ये जो हमारा ग्रुप है क्राइजोफाइट्स, इसमें डायटम्स आते हैं, यहाँ पे देखो, और ये आपका गोल्डन एल्गे आता है. एक्चुअली इफ आई एम सेइंग दे आर गोल्डन एल्गे, इसका मतलब कि ये जो आपका ग्रुप है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है. जैसे हमने पिछली बार साइनोबैक्टीरिया डिस्कस किया था, उसको साइंटिस्ट ने नेम दे दिया था ब्लू ग्रीन एल्गे. तो यहाँ पे भी एल्गे इसी कंफ्यूजन में दिया गया, क्योंकि इनके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक लैंड प्लांट्स. जैसे हमारे लैंड प्लांट्स के ऊपर क्लोरोफिल होता है, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट एक गोल्डन कलर का पिगमेंट इनकी बॉडी में प्रेजेंट है. एंड बाय यूजिंग दैट पिगमेंट, वो उनके प्लास्टिड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, एंड बाय यूटिलाइजिंग दैट पिगमेंट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन. सो दे आर फोटोसिंथेटिक, मीन्स दे आर ऑटोट्रोफिक, दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन. तो उसी कन्फ्यूजन में इनका जो नाम है वो एल्गे दे दिया, बट वी नो कि एल्गे वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट नेम इज़ नॉट साइंटिफिकली करेक्ट, बिकॉज एल्गे टर्म हम यूज़ करते हैं ग्रुप ऑफ प्लांट्स के लिए. सो दे आर नॉट एल्गे. साइंटिफिकली स्पीकिंग दे आर जस्ट यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स. ये ऐसे बहुत सारे जो आपके सिंगल सिंगल सेल्स हैं वो एक जगह पे कलेक्ट हो गए हैं. सो दे आर गिविंग द अपीयरेंस ऑफ एन एल्गे बट एक्चुअली दे आर नॉट एल्गे. ओके, इसमें जो डायटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज जैसे आपके घर में सोप केस होता है बिल्कुल उसी टाइप का इनका स्ट्रक्चर है. आई थिंक यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सी इट हियर. ये वाला डायग्राम आप देखो, यहाँ पे ये जो है दिस इज़ अ डायटम. जैसे आपके घर में सोप केस होता है, एक ऊपर उसमें लिड होती है एक नीचे लिड होती है, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है. तो ये ऊपर वाली लिड है, इसके नीचे भी एक और लिड होगी. तो ये जितने भी डायटम्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर है इट्स लाइक अ टिपिकल सोप केस स्ट्रक्चर, अपर लिड एंड लोअर लिड पार्ट दे आर हैविंग. और ये जो इनका ये सेल वॉल है, देखो कितना सुंदर, इट्स अपियरिंग सो ब्यूटीफुल, कितने ब्यूटीफुल पैटर्न्स बने हुए हैं. तो जो सेल वॉल है इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो कि नॉर्मल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट सेल्यूलोज इट इज़ ऑल्सो हैविंग सिलिका, इसके अंदर सिलिका भी प्रेजेंट है. तो अगर सिलिका प्रेजेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल में, सो दैट सेल वॉल बिकम्स वेरी हार्ड एंड इट वोंट बी डिग्रेडेड ईजीली. तो अब जब ओशन का कोई पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्राइजोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं जिनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है, तो आफ्टर देयर जब डेथ हो जाएगी ऑर्गेनिज्म की, सो दे विल बी कलेक्टेड एट अ प्लेस. और जहाँ पे वो कलेक्ट होंगे तो वहाँ पे वो एक अलग ही टाइप की सॉइल जैसा कुछ बना देते हैं विच इज़ कॉल्ड डायटमेशियस अर्थ. तो पुरानी टाइम में, आज की डेट में तो खैर बहुत एडवांस्ड आ गई हैं पॉलिशिंग वगैरह की चीज़ें. जैसे आपने घर में देखा होगा जब हम घर में वाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो उससे पहले जो पुराना पेंट होता है उसको एक पॉलिशिंग टाइप का कुछ उनका रहता है जिससे कि वो पुराना पेंट निकालते हैं. तो जब पहले ये सब चीज़ें नहीं आई थी तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे कि जो ओशन की
आसपास की जो कोस्टल एरियाज में मिट्टी है, अगर उनको ऐसा डायाटमेशियस मिल जाता था जहाँ पे बहुत सारे ये क्राइजोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं, तो उसको वो यूज़ करते थे पॉलिशिंग के लिए। कोई भी चीज़ रब करनी है उसको आपने बहुत ग्रिटी होता है, ये बहुत रफ है, दानेदार है, तो कहीं पे भी पॉलिशिंग वगैरह करनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा इसको लोग यूज़ करते थे। तो जो हमारा ये वाला ग्रुप है क्राइजोफाइट्स, उसमें जो डायाटम्स हैं दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यू कैन सी इट हेयर कि उनके सेल वॉल में देखो कितने अलग अलग ब्यूटीफुल डिज़ाइंस बने हैं। दैट इज़ ऑल ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ सेल्यूलोज एंड सिलिका। और स्ट्रक्चर इनका कैसा है, इट्स लाइक अ सोप के स्ट्रक्चर, एक ऊपर लिड है और एक नीचे जो लिड है वो प्रेजेंट है। अब व्हेन यू विल रीड द एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में ये जो हमारे डायटम्स है, गोल्डन एल्गे है, उसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ की है प्लैंकटन। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस टर्म कि व्हाट डज द टर्म प्लैंकटन मीन्स। देखो प्लैंकटन का मतलब होता है मरीन ड्रिफ्टर्स, सिंपल अगर वे में इफ आई एम टेलिंग यू, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ओशन में प्रेजेंट है और जिस भी डायरेक्शन में ओशन की वेव मूव कर रही है इट विल बी मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली। उसके अंदर अपनी खुद की बॉडी में कोई सील या कोई फ्लैजिला या कोई भी ऐसा पार्ट प्रेजेंट नहीं है जिसके थ्रू वो ओशन की जो वेव है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सके। तो अगर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर सील या फ्लैजिला या कोई भी मूवमेंट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है और जिस भी डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, टाइड मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मीन्स इट इज़ मूविंग विद द हेल्प ऑफ टाइड्स। वो सिर्फ पानी की वेव्स की डायरेक्शन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है और उसी के साथ मूव कर रहा है, अपना खुद का उसका कोई मूवमेंट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो प्लैंक्टन्स का मतलब होता है मरीन ड्रिफ्टर्स, जिस भी डायरेक्शन में विंड मूव कर रही है, सॉरी वेव मूव कर रही है, टाइड्स मूव कर रही हैं, दे आर मूविंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब क्योंकि ये जो हमारे डायटम्स हैं, गोल्डन एल्गे हैं, इनके अंदर प्लांट्स जैसे फोटोसिंथेटिक वाले पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, सो वी कैन कॉल देम एज फाइटोप्लैंक्टन्स। एक्चुअली प्लैंक्टन्स को भी दो पार्ट में साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया है। अगर उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट्स या ग्रीन पिगमेंट से मैचिंग कोई और पिगमेंट होगा, जैसे गोल्डन एल्गे में क्लोरोफिल नहीं होता बट थोड़ा सा क्लोरोफिल से डिफरेंट एक पिगमेंट होता है विच इज़ गिविंग देम गोल्डन कलर, बट बाय यूटिलाइजिंग दैट दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन, तो हम उनको बोलेंगे फाइटोप्लैंक्टन, मीन्स कि दे कैन प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन। बट बहुत सारे ऐसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर पिगमेंट्स एब्सेंट है, वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, दे आर फीडिंग ऑन सम अदर स्मॉल एनिमल्स। तो आपने शायद एक टर्म पहले पढ़ी होगी जू प्लैंक्टन्स। तो जो जू प्लैंक्टन्स होते हैं उनके अंदर पिगमेंट एब्सेंट है, सो दे आर ईटिंग और दे आर फीडिंग ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमारा ये जो क्राइजोफाइट ग्रुप है इसमें जो डायटम्स आता है, गोल्डन एल्गे आता है, ये अपना फूड, स्पेशली जो गोल्डन एल्गे हैं, वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो वी आर कॉलिंग देम एज फाइटोप्लैंक्टन्स। और जितने भी फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ये ओशन के सबसे ज़्यादा मेन प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स का मतलब है जैसे लैंड के ऊपर हमारे प्लांट्स होते हैं, वहाँ से फूड चेन स्टार्ट होती है बिकॉज वी नो दे कैन प्रोड्यूस फूड ऑन देयर ओन। तो ओशन में ये काम कौन करता है, दिस इज मोस्टली बीइंग डन बाय द गोल्डन एल्गे एंड सम ऑफ द क्राइसोफाइट्स विच आर हैविंग द पिगमेंट्स, क्योंकि वो ही ओशन के मेन प्रोड्यूसर्स हैं। दे आर इक्विवेलेंट टू द लैंड प्लांट्स बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग द फूड। तो जितनी भी हमारी ओशन के अंदर फूड चेन्स हैं, फूड वेब हैं, वो ऑटोमेटिकली फाइटोप्लैंक्टन से ही स्टार्ट होंगी। फाइटोप्लैंक्टन से उसको कोई स्मॉल फिश खाएगी, देन दैट स्मॉल फिश विल बी ईटन बाय द लार्ज फिश एंड सो ऑन। तो जितनी भी हमारी फूड चेन्स हैं वो सारी किससे स्टार्ट होंगी, ओशन में। या तो किसी एल्गे से स्टार्ट हो रही हैं जो कि ओशन में ग्रो कर रहा है, बिकॉज एल्गे भी फूड अपना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर ऐसे फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होंगी। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग कि जो ओशन है उसमें जितना भी फूड प्रोडक्शन होता है उसका 70% इज बीइंग डन बाय दीज फाइटोप्लैंक्टन्स। So we are calling them as the chief producers in the ocean. Now coming to this group, इसमें ये देखो आप, ये इन्होंने शो किया हुआ है कि ये डायाटमेशियस अर्थ है, मतलब जो रिमेन्स रह जाते हैं शेल्स के, डायाटम्स के, उसको हम ऐसे पूरा ग्रिटी ऐसे पाउडर जैसा वगैरह कुछ बना के पॉलिशिंग के लिए या फिल्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ऑल्सो वी कैन यूज। ओके, then we have second group of kingdom protista, which is called dinoflagellates. Now talking about this dinoflagellates, so you can see the picture here. You can see how beautiful these organisms are. कितने कलरफुल भी हैं एंड स्मॉल साइज एंड स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। सो इसका पहले वर्ड को हम स्प्लिट करके देखेंगे। डाई मीन्स टू, फ्लैजिलेट्स मीन्स हैविंग फ्लैजिला। तो अगर हम एक जनरल स्ट्रक्चर बनाएं तो इनमें इस टाइप का जनरल स्ट्रक्चर है,
और दो फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक तो ऐसे प्रेजेंट है जो मैंने ग्रीन थ्रेड सा बनाया, और एक ऐसे प्रेजेंट होगा। तो ये वाला जो फ्लैजिला है, जो कि दो इनके जो पार्ट्स हैं उसके बीच में लेंथ वाइज प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला, लेंथ वाइज प्रेजेंट है। आई थिंक ये वाला कलर विजिबल नहीं है, सो यहाँ पे मैं एल लिख देती हूँ। ये वाला हमारा जो फ्लैजिला है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। ये वाला जो हमारा फ्लैजिला है जो ऐसे इट इज कमिंग फ्रॉम टॉप पोजिशन टू डाउन, दिस फ्लैजिला वुड बी कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्लैजिला। सो दो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट है, एक है लॉन्गिट्यूडनल, एक है ट्रांसवर्स, एंड बिकॉज इसमें टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट, सो वी विल बी कॉलिंग इट एज अ डाइनो फ्लैजिलेट। ठीक है। देन वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट थिंग कि जो इनका स्ट्रक्चर है, इसमें भी सेल्यूलोज प्लेट्स प्रेजेंट है। यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना हुआ है, अलग अलग पैटर्न्स बने हुए हैं, सो दे आर वेरी ब्यूटीफुल। एंड अगर कभी आप किसी नेट से इनकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक पिक्स वगैरह देखोगे तो यू विल फाइंड कि भले ही ऑर्गेनिज्म छोटा है, बट दे आर रियली रियली वेरी ब्यूटीफुल। ओके। देन टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, दैट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि इनका नाम हमने डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों दिया है, बिकॉज दे आर हैविंग टू फ्लैजिला, सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। अब इनके अंदर डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल होता है तो दे अपीयर ग्रीन, तो यहाँ पे दे माइट बी हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट्स, एंड दैट इज वाई दे माइट बी हैविंग डिफरेंट कलर्स। जैसे आपने ये पिक्चर्स में भी देखा है, देखो कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, ग्रीन में भी सो मेनी शेड्स आर देयर, सो दे माइट बी हैविंग डिफरेंट कलर्स, दैट इज बिकॉज येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन भी हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं। ये सारा कलर का डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन साइड देयर बॉडी। अब देखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है ये जो रेड कलर है, ओके, बट ये जो एक रेड कलर का डाइनोफ्लैजिलेट है जिसका नेम आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, गोनियोलेक्स, दो इट अपीयर्स वेरी ब्यूटीफुल अंडर द माइक्रोस्कोप, लेकिन जब ये ओशन के किसी पार्ट में ग्रो करना शुरू कर देता है, देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, जो आपकी फिशरीज में इन्वॉल्व हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस कि हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द मरीन इकोसिस्टम। एक्चुअली लेट्स से कि ओशन का कोई पार्ट है और यहाँ पे जो ये रेड कलर वाला गोनियोलेक्स है, डाइनोफ्लैजिलेट है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। एक्चुअली दे सिंपली डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन, तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड ये जो गोनियोलेक्स होता है, जब ये पूरा डैमेज हो जाता है, डीके हो जाता है, एट दैट टाइम इट रिलीजेज अ पॉइजनस सब्सटेंस, इट रिलीजेज अ टॉक्सिन, और ये जितना ज़्यादा इसका नंबर बाइनरी फिशन से इंक्रीज होता जाएगा, उतना ज़्यादा टॉक्सिन ये रिलीज़ कर रहा है, उतना ज़्यादा पॉइजनस सब्सटेंस ये वाटर में रिलीज़ कर रहा है। एंड यू कैन सी कि ओशन का ये पूरा स्ट्रेच जिसमें गोनियोलेक्स ग्रो कर रहा है, नाउ इट हैज़ स्टार्टेड अपीयरिंग रेड इन कलर, और जितना ज़्यादा टॉक्सिन ये रिलीज़ हो रहा है तो उस एरिया में जितने भी एल्गे हैं, मीन्स फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि प्लांट्स टाइप होते हैं, या स्मॉल फिशेज हैं, लार्ज फिशेज हैं, वो सारे किल हो जाएंगे। तो जितने भी मरीन लाइफ हैं, वेदर इट इज़ एन एक्वाटिक प्लांट और एक्वाटिक एनिमल, ऑल ऑफ देम विल बी किल्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे गोनियोलेक्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। सो दैट इज़ वाई इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। एंड जो भी लोग फिशरी में इन्वॉल्व होते हैं उनको पता होता है कि अगर ओशन का कोई पार्ट ऐसे रेड कलर का अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब उसमें गोनियोलेक्स हैज़ स्टार्टेड ग्रोइंग। इसको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट कॉमन नेम से जो फिशरमैन है दे आर एबल टू आइडेंटिफाई, और उनको पता होता है कि जहाँ पे ओशन का पैच ऐसे पूरा रेड हो गया है, इसका मतलब अब वहाँ पे हमें फिशेज नहीं मिलेंगी, the fishes must have died in that particular area. Then we have the third group that is called euglenoids. Okay, अब ये वाला जो हमारा ग्रुप है जिसको कि हम कह रहे हैं यूग्लिनॉइड्स, इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म आता है यूग्लिना। यू कैन सी ये हमारा कोई वाटर बॉडी कलेक्टेड है, पूरा ग्रीनिश इन कलर अपीयर हो रहा है बिकॉज इसमें यूग्लिना इज ग्रोइंग इन लार्ज अमाउंट। यूग्लिना इज एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, फ्रेश वाटर में हमें मिलता है। अब जब ये फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, सो साइंटिस्ट वर बैफिल्ड, उनको नहीं समझ में आ रहा था कि हम इसको प्लांट कहें, हम इसको एनिमल कहें, हम इसको कौन से किंगडम में डालें, या इसके लिए कोई सेपरेट किंगडम क्रिएट कर दें। अ लॉट ऑफ डिबेट वाज गोइंग ऑन इन द साइंटिफिक कम्युनिटी, नहीं पता था कि हमें इसको कहाँ पे प्लेस करना है। तो फिर जब इसका स्ट्रक्चर पूरा डिटेल में उन्होंने डिस्कस किया तो पहली चीज़ उन्होंने नोट की वो ये है कि इसके अराउंड ये जो इसकी कवरिंग है, इट इज़ मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड पेलिकल, प्रोटीन की बनी हुई है, कोई सेल्यूलोज सिलिका कुछ नहीं है। इट इज़ हैविंग अ फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड विच इज़ कॉल्ड पेलिकल। अब इसमें फ्लैजिला देखें तो इसमें भी दो फ्लैजिला होते हैं। ये देखो, ये जो रेड कलर का बड़ा सा बना हुआ है ये लॉन्ग फ्लैजिला है, और यहाँ पे एक छोटा सा
शॉर्ट फ्लैजिला है। आप अपनी एनसीईआरटी बुक भी ध्यान से देखना, उसमें ऐसे बना होगा, एक लाइन ऐसे नीचे बाइफरकेट करके दिखा दी होगी। तो ये जो छोटी सी लाइन ऐसे बाइफरकेट में दिखाई है, दिस इज द शॉर्ट फ्लैजिला, दिस वन इज द लॉन्ग फ्लैजिला। तो इसमें भी 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, लेकिन दोनों फ्लैजिला का जो साइज है इट्स वेरी डिफरेंट। नाउ कमिंग टू इट्स प्रॉपर्टी, कि इसके ऊपर इतना डिबेट क्यों हुआ कि इसको कौन से ग्रुप में डालें, बिकॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम बायोलॉजिस्ट कुड नॉट डिसाइड वेदर इट्स अ प्लांट और इट्स एन एनिमल। तो ये जो यूग्लिना है, इसके अंदर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वो बिल्कुल इट इज़ आइडेंटिकल इन स्ट्रक्चर टू द पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द लैंड प्लांट्स। जो हमारे लैंड के ऊपर ग्रीन प्लांट्स हैं उसके साथ मैचिंग वाला पिगमेंट प्रेजेंट है। और इसके अंदर बड़ी यूनिक प्रॉपर्टी है, जैसे अगर ये अभी किसी फ्रेश वाटर में बॉडी में ग्रो कर रहा है, वहाँ पे अगर सनलाइट अवेलेबल है, तो जैसे हमारे प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे प्रॉपर्टी शो करेगा। मीन्स कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट कैन प्रिपेयर इट्स फूड, और ऐसे लगेगा आपको कि ये यूनिसेलुलर मीन्स प्लांट लाइक फीचर्स जो है वो शो कर रहा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या कोई ऐसी फ्रेश वाटर बॉडी है जहाँ पे सनलाइट इज़ नॉट एबल टू पेनिट्रेट और रीच, या लैब में हमने इसको किसी बीकर में, फ्रेश वाटर में जहाँ पे यूग्लिना ग्रो कर रहा था, वहाँ से इसको बीकर में लिया और लैब में किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे कोई सनलाइट नहीं आ रही है, नेचुरली भी हो सकता है या आर्टिफिशियली भी, हमने एक ऐसे प्लेस पे रखा है यूग्लिना को वेयर देयर इज नो सनलाइट अवेलेबल, देन इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एनिमल। जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उसमें लिखा होगा बिहेव लाइक हेटरोट्रोफ्स, एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू से कि इट विल नाउ स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन एनिमल। और अगर उस वाटर में अपार्ट फ्रॉम यूग्लिना कोई और छोटा organism present है, some other unicellular organism is present, then it will start killing it and it will start eating it, the other small organism। तो बिल्कुल एनिमल की तरह बिहेव करता है इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके अंदर दोनों टाइप के फीचर्स हैं, प्लांट्स के भी फीचर्स हैं, क्योंकि अगर ये सनलाइट में प्रेजेंट है तो ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और अगर ये ऐसे प्लेस पे है जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं है, तो ये एनिमल्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट को लगा कि ये तो बड़ा यूनिक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फोटोसिंथेटिक भी है और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। सो यहाँ पे उन्होंने एक न्यू टर्म इसके लिए दी है, जिसको कि हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है विच इज़ हैविंग मिक्स्ड और विच इज़ हैविंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है, हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो प्रेजेंट। और उसके बाद फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म इसके लिए दी गई, दैट इट इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन plants and animals। CL word stands for connecting link। तो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं, तो हम उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। और यहाँ पे आप देखो यूग्लिना के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। एक्चुअली जब ये सनलाइट के एब्सेंस में होता है तो इसका जितना भी ये ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सारा ब्लीच आउट हो जाएगा, इसका कलर ग्रीन से एकदम वी कैन से ग्रेइश या ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है, थोड़ा सा ग्रे शेड में आ जाएगा। मतलब इसके जो क्लोरोफिल वाले पिगमेंट हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट में वो पूरा डैमेज हो जाएंगे और ये एनिमल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। इसको फिर से आप सनलाइट में रखोगे तो धीरे धीरे फिर बॉडी में क्लोरोफिल फॉर्म हो जाएगा। तो दोनों ग्रुप की प्रॉपर्टी इसके अंदर है, प्लांट्स की भी है, एनिमल्स की भी हैं। तो ये इतना यूनिक ऑर्गेनिज्म लगा साइंटिस्ट को कि उन्होंने इसके लिए एक अलग से ग्रुप बना दिया, एंड दैट ग्रुप इज कॉल्ड यूग्लिनोइड्स। देन वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ ग्रुप, दैट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी तो डिस्कवरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, ये आपका रॉक सरफेसेस के ऊपर जो स्लाइम मोल्ड है वो ग्रो कर रहा है। तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एक्चुअली इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सैप्रोफाइटिक। प्रोटिस्ट है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, लेकिन ये ऐसे कॉलोनीज में रहता है। तो जब ये ऐसे कॉलोनीज में रहेगा, पूरा ऐसे बंच बना देता है। यहाँ पे देखो ये बनाया हुआ है, और ये जो डॉट डॉट्स बनाई हुई हैं ये एक्चुअली न्यूक्लियस है। तो बहुत सारी जो सेल्स होती हैं यूनिसेल्युलर इसकी सेल्स हैं, वो आपस में ऐसे फ्यूज़ होके पूरा एक मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बना देती हैं। जैसे आप इमेजिन करो, ये एक यूनिसेलुलर स्लाइम मोल्ड की सेल है, ये दूसरी सेल है, ये तीसरी सेल है। ऐसे जब थाउजेंड्स ऑफ सच सेल विल फ्यूज टुगेदर तो उनका साइटोप्लाज्म तो एक हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियस होगा वो हमें ऐसे डॉट डॉट्स के फॉर्म में नजर आएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। तो ये दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स हैव फ्यूज टुगेदर। साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया बट न्यूक्लियस अभी अलग अलग है, मीन्स इट विल बी फॉर्मिंग अ मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म। तो ये जो हमें येलोइश कलर का ये नज़र आ रहा है वो एक्चुअली इस टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसमें बहुत सारी सेल्स आपस में फ्यूज हो चुकी हैं, एंड दे हैव फॉर्म्ड अ
मास लाइक। तो ये जब फर्स्ट टाइम ऐसे डिस्कवर हुआ, इसको फाइंड आउट किसी साइंटिस्ट ने देखा, तो उस टाइम पे साइंटिस्ट जो थे वो बड़े बैफल्ड थे, उनको समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। ठीक है, तो उस टाइम पे कुछ लोगों ने बोला कि मे बी दिस इज़ अ समथिंग विच हैज़ कम फ्रॉम सम अदर प्लानट, ये कोई एलियन सब्सटेंस हो सकता है, क्योंकि ये इतना जेली लाइक होता है। और इसको फिर उन्होंने बहुत स्टडी किया, दे कुड नॉट फाइंड इट आउट कि एक्चुअली है क्या। फिर लेटर ऑन जब बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक को यूज़ करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अदर टेक्निक्स इसका स्ट्रक्चर दे हैड स्टडीड, देन दे केम टू नो कि बहुत सारी ऐसे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स हैं जो आपस में फ्यूज़ हो चुकी हैं, एंड नाउ दे आर फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो इसने मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बनाया है, दिस इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ओके, तो ये जो हम येलो कलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड मास है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम टर्म आपने पढ़ा होता है कि जिससे मलेरिया फीवर होता है, बट ये वाला दूसरा प्लाज्मोडियम है। द सेम टर्म इज ऑल्सो रेफरिंग टू द मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ दिस स्लाइम मोल्ड। अब देखो, मैं इसको स्लाइम मोल्ड कह रही हूँ, मोल्ड वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फंजाई के लिए। तो एक्चुअली ये वाला जो स्लाइम मोल्ड है, ये वाला जो ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, ये भी एक टाइप का कनेक्टिंग लिंक है, बिकॉज ये प्रोटिस्टा और फंगस दोनों के फीचर्स को शो करता है। तो क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत डिफरेंट है, तो इसके लिए अलग ग्रुप बनाया गया। तो जब भी ये फेवरेबल कंडीशंस में होगा, मीन सिचुएशंस आर वेरी गुड फॉर इट, तो इट विल बी फॉर्मिंग दिस मल्टी न्यूक्लिएटेड मास्क विच इज़ कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और जब अनफेवरेबल सिचुएशन होगी, तो ये जो प्लाज्मोडियम है, जैसे फंजाई का होता है ना, बिल्कुल वैसे फ्रूटिंग बॉडी, जैसे आपने ब्रेड मोल्ड का डायग्राम पढ़ा होगा कि उसके ऊपर पूरा ऐसे स्पोरेंजियम बन जाएगा, उसके अंदर स्पोर्स बन जाएंगे। तो अगर अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, तो ये ऐसा फ्रूटिंग बॉडी बना देता है जैसे फंजाई बनाते हैं। और ये जो स्पोरेंजियम है, इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे, एंड दी स्पोर्स आर हैविंग वेरी थिक वॉल, बहुत ज़्यादा थिक वॉल इनके आसपास जो है वो प्रेजेंट है। और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट होगा, तो ये जो स्पोर्स हैं, दे विल बी कैरिड बाय द एयर करंट, बिल्कुल वैसे ही जैसे फंजाई के होते हैं। एंड वेर एवर दे विल लैंड, दे विल जर्मिनेट, दे विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। तो इनके अंदर भी प्रोटिस्टा वाले और फंजाई वाली प्रॉपर्टीज़ दोनों प्रेजेंट है। तो अगर फेवरेबल सिचुएशन है, तो ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड मास बनाएंगे, अनफेवरेबल सिचुएशन है, देन दे विल बी फॉर्मिंग द स्पोर्स। लेकिन जब आप अपनी एनसीईआरटी बुक से रीड करोगे, तो उसमें स्लाइम मोल्ड का कोई एग्जाम्पल मेंशन नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी बुक में 2 एग्जाम्पल्स लिख लो। वी हैव फाइसारम, ये एक पूरा जीनस है स्लाइम मोल्ड्स का। देन वी हैव क्रिबैरिया। लर्न एटलीस्ट दोनों में से, चलो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल आप लर्न कर लेना, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विद। ओके, देन वी हैव द लास्ट ग्रुप। ये देखो, ये स्पोर्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं स्लाइम मोल्स के। ये देखो, कैन यू सी, स्पोरेंजियम है, ये पूरा इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। तो जब ये आपका नॉर्मल सिचुएशन है, तो ऐसे प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड मास में एग्जिस्ट करेगा। जब अनफेवरेबल सिचुएशन है, तो ऐसे फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, उसके अंदर मियोसिस से स्पोर्स बन रहे हैं। ये स्पोर्स जो हैं वो सम टाइम दे में फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, एंड देन दे में अगेन फॉर्म दिस प्लाज्मोडियम। सो दिस इज हाउ देयर लाइफ साइकिल विल कंटिन्यू। उसके बाद इसमें जो लास्ट ग्रुप है, that is about protozoans, which is the fifth group of the kingdom protista. अब ये जो protozoans group है, actually जब first 4 groups बना लिए साइंटिस्ट ने, क्राइजोफाइट्स बना लिया, डाइनोफ्लैजिलेट्स बना लिया, यूक्लिनोइड्स बना लिया, स्लाइम मोल्ड्स दे हैड क्रिएटेड, उसके बाद भी बहुत सारे यूनिसेलुलर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो बच गए। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका पैरामीशियम बच गया, अमीबा बच गया, एंट अमीबा वाज लेफ्ट। तो अब साइंटिस्ट ने सोचा इन सब के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, कि हम इनको कौन से ग्रुप में डालें, क्या सबके लिए अलग अलग ग्रुप बनाएं, और शुड वी क्लब देम इन द सेम थिंग, कोई सिमिलर अगर फीचर है तो। एंड देन दे कुड फाइंड इट आउट कि जितने भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं, मतलब सम ऑफ देम विच वर लेफ्ट, इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर है दैट दे आर हेट्रोट्रोफ, इनके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है। They are having heterotrophic mode of nutrition, means they are dependent on some other organism, एंड वी नो हेट्रोट्रोफ या तो सैप्रोफाइट हो सकता है या पैरासाइट हो सकता है, तो ये उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म है। तो इन सब के अंदर जो कॉमन फीचर था कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है दैट इज हेट्रोट्रोफिक, एंड दैट इज हाउ इनको एक ग्रुप में क्लब कर दिया गया, एंड दैट नेम ऑफ द ग्रुप इज द प्रोटोजोन्स। अब इस ग्रुप को भी उन्होंने फर्दर 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ लोकोमोशन, कि वो कैसे मूव कर रहे हैं। तो अगर वो ऑर्गेनिज्म अमीबा के जैसे, जैसे अमीबा होता है स्यूडोपोडिया या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू मूव करता है, वैसे मूव कर रहा है, तो उस ग्रुप का नेम उन्होंने दे दिया अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जिसमें कि अमीबा आता है। ओके, अमीबा का डायग्राम आप छोटी क्लासेस से स्टडी कर रहे हो। देन अगर फ्लैजिला के थ्रू मूव कर रहा है, जैसे ये वाला डायग्राम आपने 9-10 में देखा होगा, आपकी
9th 10th की बुक में शायद 10th में था ना, ट्रिपैनोसोमा, यू माइट हैव स्टडीड देयर आल्सो, व्हिच कॉजेज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। तो अगर ऑर्गेनिज्म ऐसे फ्लैजिला से मूव कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन। अगर पैरामीशियम जैसा है, बॉडी के ऊपर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं और सीलिया के थ्रू वो मूव कर रहा है, देन इट विल बी कॉल्ड सीलिएटेड प्रोटोजोअन। आपने शायद क्लास 9th 10th में पढ़ा होगा कि ये जो सीलिएटेड प्रोटोजोअन होता है, इसके यहाँ पे एक ऐसे माउथ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कि हम बोलते हैं, एक कैविटी होगी जिसको गलेट कहते हैं, और ये आगे चल के एक इट्स ओपनिंग इनटू अ स्ट्रक्चर जो कि माउथ की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करता है। एक्चुअली जब ये सीलिया सारे कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूव करेंगे तो वाटर में जितने भी बाकी स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं, दे विल बी एंटरिंग इनटू दिस गलेट एंड देन दे विल बी एंटरिंग इनसाइड दिस माउथ लाइक स्ट्रक्चर। तो अगर ऑर्गेनिज्म सीलिया के थ्रू मूव भी कर रहा है एंड विद द हेल्प ऑफ सीलिया इट इज ट्रैपिंग द फूड एंड कैप्चरिंग द फूड, then that group of organism will be called ciliated protozoans. Then we have last group which is called स्पोरोजोअन्स। ठीक है, अब ये जो स्पोरोजोअन्स हैं इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इनके लाइफ साइकिल में एक ऐसे सिकल शेप कहीं ना कहीं पे जो स्टेज है वो प्रेजेंट है। ठीक है, कोई ऐसी इन्फेक्शियस स्टेज होगी विच इज़ हैविंग अ सिकल शेप स्ट्रक्चर। तो जब हम क्लास 11th में, सॉरी क्लास 12th में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ का, when we will be studying the life cycle of plasmodium, वो वाला प्लाज्मोडियम नहीं जो अभी हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा है, दूसरा वाला जो प्लाज्मोडियम होता है जिससे मलेरिया डिजीज होती है। सो व्हेन वी विल बी स्टडिंग दैट लाइफ साइकिल देन वी विल सी कि उसमें ऐसा एक सिकल शेप स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। तो जो भी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऐसा सिकल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है और जिसमें कोई मूवमेंट का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, जैसे इसमें फ्लैजिला है, इसमें सीलिया है, इसमें आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, यहाँ पे कोई मूवमेंट के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म ये ग्रो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए। सो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये दो फीचर्स हैं कि ऐसा सिकल शेप स्ट्रक्चर भी वो फॉर्म करेंगे और कोई उनका अपना मूवमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, दे आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द होस्ट फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट ग्रुप विल बी कॉल्ड स्पोरोजोअन्स। इसमें हमारा प्लाज्मोडियम इंक्लूडेड है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट द किंगडम प्रोटेस्टा। सो लेट्स रिकैपिचुलेट कि जो हमारा किंगडम प्रोटेस्टा है, ये यहाँ पे आपको पीपीटी अभी जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा देन आई विल बी फॉरवर्डिंग इट टू यू। सो इसमें यू कैन सी ये जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स है उसमें अमीबा भी आता है, एंट अमीबा भी आता है। एक्चुअली दोनों काफ़ी हद तक रिलेटेड हैं बट इनकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस है। जैसे अमीबा तो आपका नॉन पैथोजेनिक है, नॉन पैथोजेनिक मीन्स कि विच इज़ नॉट एबल टू कॉज एनी डिजीज़। ठीक है, एंट अमीबा हम डिस्कस करेंगे कि ये पैथोजेनिक होता है, इट इज़ एबल टू अफेक्ट आर digestive system, especially the small intestine and the large intestine, and it can cause disease also. Amoebiasis एक disease होता है which is caused by the ant amoeba, ये आप class 12 में पढ़ोगे। Then flagellated जो protozoans है उसमें ये trypanosoma का example है जिसमें flagellum present है and we know it is responsible for causing sleeping sickness. Then ciliated protozoa का diagram देखो ये रहा आपका, इसमें cilia present है, paramecium is the main एग्जाम्पल यू हैव टू लर्न। इसका फ्लो चार्ट बना के लर्न कर लेना, देन इट विल बी ईजी फॉर यू। और इसके बाद इसमें स्पोरोजोअन्स इज द लास्ट ग्रुप जिसमें ऐसे सिकल शेप स्पोर लाइक स्टेज फॉर्म होगी, कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है फॉर मूवमेंट। सो जो हमारा लास्ट वाला ग्रुप है विच इज़ कॉल्ड प्रोटोजोअन्स, उसको हमने 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। और 5 मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन वी आर हैविंग इज क्राइजोफाइट, देन वी आर हैविंग डाइनोफ्लैजिलेट, then we are having euglenoid, slime mold, protozoans. So please इसको एक बार go through कर लेना and whatever doubts you are having you may ask in the next class. So next class में हमने kingdom fungi जो है वो finish करना है, उसका मैंने एक डायग्राम, एक फ्लो चार्ट आपकी ग्रुप पे भेजा हुआ है। सो प्लीज़ ड्रॉ दैट फ्लो चार्ट इन योर नोटबुक बिकॉज उसके बिना फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक है वो नहीं कर पाएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।